Namaste. I am JVN Dr. Anchit from the Department of Physiotherapy and Diagnostics from Jyoti Vidyapith Women's University. Today we are going to pick up the subject physiotherapy in fitness and slimming. The topic that we are going to discuss today is about fitness, and the subtopic will be importance of stretching in exercises. Why stretching is important? What is stretching? What are the different ways how stretching is done, and what are the determinants of stretching? What defines its effectiveness? So let us begin the topic for today. What is stretching? We've heard that in the last lecture we had covered why warm up is very important in exercises. A major part of warm up is stretching. So, what is stretching? How do we define stretching? So, let us know how do we define stretching. The stretching is a general term used to describe any therapeutic maneuver designed to increase the extensibility of soft tissue, thereby improving flexibility by elongating structures that have adaptively shortened and have become hypomobile over time. Again, it is a general term used to define a therapeutic maneuver which is used to effectively elongate the soft tissue and increasing its flexibility by elongating it, that is extensively elongating it. And why do we do it? Because there are certain structures that become hypomobile, that is shortened. So there are certain structures that are muscles and tendons sometimes due to various reasons. The reasons can be our bad posture, any previous trauma, any pathology present, any kind of stiffness, and any congenital defects that may be present. So due to all that, there are structures which become shortened and which results into hypomobility. That is the joint range of motion which should be present isn't there. For example, if for a joint a normal range of motion is 0 to 110 degrees, so due to various reasons that mobility may have decreased to 0 to 90 degrees, so there is a difference of that 20 degree. So stretching is aimed to cover that 20 degree and to make the joint again move from 0 to 110 degrees. So this is the reason stretching is used. Also, it makes the structure, the soft tissues more flexible by relaxing it, by releasing the tension. It is also very effective in opening up the spasm. The same reason applies. It relaxes the muscles, it elongates the shortened structures, and makes the joint less hypomobile. That is, again, the mobility of the joint is restored. So this is a brief we've known, and a very simpler way of defining it is just stretching a soft tissue by elongating it. For example, if we have to stretch the flexors, what we have to do is we have to make the joint go into full extension. That is the end range of extension. Going into end range of extension will stretch the flexors. So it is a contra action. That is, for stretching the flexors, we have to go into extension, and for flexing the for stretching the extensors, we have to go into full flexion. Now there are various determinants that define or that uh, concludes how good the stretching is. The first determinant is alignment. Alignment of the joints of the body and of the therapist is very important. Why is it important? Because for every stretch there is a proper position that should be maintained. All the joints should be in line of motion. There shouldn't be any zigzag motions, or the joint shouldn't be malaligned. The reason for it is, if the joints are in position and if the soft tissue are in position, the maximum amount of stress that is being developed is equally distributed, thereby giving out the maximum efficiency and minimizing any kind of further tears that can happen due to malalignment. For example, if we have to stretch the quadricep muscles, that is, if we have to, quadriceps are responsible for knee flexion. So what we have to do is we have to extend the knee.
So if it is a self stretching and if a person is standing, it is very important that the hip and the knee and the trunk should be in line of position. There shouldn't be any swaying while doing it. The proper positioning results into maximum effectiveness, and quadriceps can be easily stretched in the maximum way possible. The second determinant is stabilization. Stabilization is very important because stabilization enables us to just focus on one part, and it uh, removes the other part in play. For example, if we talk about the same thing, usually stabilization is much important when it is done passively. In self stretching also it is equally important, but it is very much important if we do it in a passive way. So if I take the same example of uh, stretching the quadriceps in a passive way, so what happens is a person is lying on a bed in prone lying position, and the therapist flexes the knee to a complete flexion. So in that case, what therapist does is therapist usually stabilizes the proximal joint. So in stabilization, what we have to do is, what is stabilization? We have to, whatever joint we are moving, we have to stabilize the proximal and the distal joint so that maximum efficiency is delivered to the joint in question. And usually the trend is, or usually what we do is, we almost every time stabilizes the proximal joint and move the distal joint. So in the quadriceps stretching, we stabilize the pelvis or the hip and we move the ankle. The ankle can also be stabilized with our hand, so we move the ankle. So stabilization is very important as it stops any other joints to come into play, and all the effectiveness is maintained in that particular joint. For example, while if we won't stabilize the hip or the pelvis, what will happen is in the end range of motion, there will be hip extension also. So while the hip is extended, the result of stretching will reduce on quadriceps, thereby decreasing its efficacy. तो हमको स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. जब भी हम स्टेबलाइज करते हैं, हमको ध्यान देना होता है कि द जॉइंट इन क्वेश्चन शुड हैव मैक्सिमम बेनिफिट. इसलिए हम प्रॉक्सिमल जॉइंट को ज़्यादातर स्टेबलाइज करते हैं और डिस्टल को मूव करते हैं. और जब भी हम डिस्टल को मूव करते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि अगर हम अपने हाथ से कर रहे हैं तो डिस्टल वाले जॉइंट को अपने हाथ से स्टेबलाइज कर दें. उससे क्या होता है, स्ट्रेच देते समय भी जब हम एंड रेंज में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो फोर्स है वो डाइवर्ट हो सकता है. लेकिन जब हमने स्टेबलाइज किया हुआ होता है तो हमारा जो मोशन है, फोर्स है, वो उसी डायरेक्शन में रहता है और टीयर्स होने के लिए दिक्कत नहीं होती है. तीसरा जो डिटर्मिनेंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच. इंटेंसिटी डिफाइन करता है कि हम कितने इंटेंसिटी से स्ट्रेच दे रहे हैं. सो यूजुअली स्ट्रेचिंग के लिए लो इंटेंसिटी रिकमेंडेड होता है. होते वैसे दोनों लो और हाई में ही हैं. हाई इंटेंसिटी में देना ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं या फिर सोरनेस हो सकती है. लो इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया जाता है, उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं. इंटेंसिटी का मतलब है कि आप किस स्पीड से आप स्ट्रेच दे रहे हैं और कितना उसको मेंटेन रख रहे हैं. तो लो इंटेंसिटी इसलिए हमेशा रिकमेंड करते हैं क्योंकि जब आप धीरे धीरे स्ट्रेच देते हैं तो मसल को हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए, तभी वो एंड रेंज में जा पाती है. तो जब आप धीरे धीरे स्ट्रेच देते हैं तो इट इज़ ईजियर फॉर मसल टू रिलैक्स एज कम्पेयर टू व्हेन यू डू इट इन अ फास्ट मैनर, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी मैनर. हाई इंटेंसिटी में यूजुअली कई बार उल्टा हो जाता है, मसल ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और आप स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते हैं. इसलिए स्पैज़म को जब खोलते हैं तो स्पैज़म में लो इंटेंसिटी स्ट्रेचेस देते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देते हैं. तो इंटेंसिटी, टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Duration of intensity is the fourth factor which determines the effectiveness, that is the duration of stretching. कितने टाइम तक आप स्ट्रेच दे रहे हो, कितने टाइम तक स्ट्रेच मेंटेन रख रहे हो, और कितने टाइम तक आप पूरा जो स्ट्रेचिंग मैकेनिज्म है, मतलब आपका जो दिन का शेड्यूल है वो कितना है, वो दोनों ड्यूरेशन इसके अंदर काउंट होती हैं. यूजुअली किसी भी स्ट्रेच देने के बाद तक 5 से 10 सेकेंड तक उसको रोका जाता है, सस्टेन किया जाता है और वापस से फिर दूसरा स्ट्रेच दिया जाता है.
तो डैट ड्यूरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस ड्यूरेशन में मसल अपने आप को अडेप्ट करती है। जैसे कि एक रेंज तक तो आप उसको हमेशा लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री तक आराम से जॉइंट मूव होता है। फिर जब 90 के बियॉन्ड जाते हैं तो मसल रेजिस्टेंस आपको देना शुरू कर देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर या तो टाइट होता है या शॉर्टन होता है। तो जब आप 90 से प्रोलॉन्ग जाते हैं तो उसको वहाँ पे जाके जहाँ तक भी आप रीच कर सकते हैं, 95 तक, 100 तक, और ये प्रोग्रेसिव होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन 90 से 110 पे लें, क्योंकि स्ट्रक्चर छोटा है, पेनफुल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए हमको स्लोली प्रोग्रेस करना होता है। तो जब हम 90 से 95 तक लेके जाते हैं तो वहाँ पे रख के उसको होल्ड करते हैं, ताकि मसल को वो जो स्ट्रेच है वो मसल उसको फील कर सके और उसको सस्टेन कर सके। इसका मतलब जब हम वापस लेके आएँ तो हम 95 तक आराम से आ जाएँ, तो उसके लिए होल्ड करना वहाँ पे ज़रूरी होता है। होल्डिंग वाले, होल्ड रिलैक्स वाली टेक्निक्स हमारी पीएनएफ में भी होती हैं, जो हम पीएनएफ की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर भी ये सारी टेक्निक्स काम में आती हैं। इसका यही एडवांटेज होता है। फिर फिफ्थ डिटर्मिनेंट होता है हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रेच, कितनी स्पीड से हम करते हैं। अगेन इंटेंसिटी और स्पीड में हम बात कर चुके हैं, तो हम इसमें स्लो स्पीड में भी करते हैं और हायर स्पीड में भी करते हैं। फिर जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच मतलब हम एक दिन के अंदर कितनी बार करते हैं और हम एक वीक के अंदर क्या प्रोटोकॉल बनाते हैं। तो यूजुअली जो फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट करते हैं कि हफ्ते के अंदर कम से कम 3 से 4 बार स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। तो जिस भी हम जॉइंट को एम कर रहे हैं या जिस भी सॉफ्ट टिश्यू को हमको खोलना है, स्ट्रेच करना है, कम से कम रिकमेंडेड होता है 3 से 4 बार हफ्ते में उसको रिपीट किया जाए, और दिन के अंदर कितनी बार करना है और एक टाइम पे कितनी बार करना है। तो यूजुअली एक मसल ग्रुप को हम कम से कम 2 बार, एक टाइम जब हम करते हैं तो कम से कम 2 बार उसको स्ट्रेच करते हैं और उस स्ट्रेच को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। फिर जो लास्ट डिटर्मिनेंट है हमारा वो है मोड ऑफ स्ट्रेच। मोड ऑफ स्ट्रेच मतलब किस तरीके से हम स्ट्रेच करते हैं। तो अलग अलग मोड्स होते हैं। एक होता है सेल्फ स्ट्रेचिंग, जिसके अंदर हम अपने आप करते हैं, सारे मसल्स के एक्शंस हमको पता होते हैं, तो उसके ऑपोजिट एक्शंस किए जाते हैं, खुद ही हमको करना होता है, और उसके अंदर अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी का हमको ध्यान रखना होता है। जब हम कोई स्ट्रेच खुद नहीं कर पाते तो दूसरे तरीके का जो मोड होता है वो होता है पैसिव स्ट्रेच। उसके अंदर यूजुअली थेरेपिस्ट होता है, या आपका कोई को एथलीट हो सकता है, या कोई भी एजुकेटेड पर्सन जिसको स्ट्रेचिंग आती हो वो करा सकता है। तीसरे तरीके का होता है मैनुअल स्ट्रेचिंग, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। मैकेनिकल स्ट्रेचिंग इज़ अ स्ट्रेचिंग इन विद द हेल्प ऑफ वेरियस एड्स, जैसे कि कुछ मशीन्स होती हैं जो रेंज ऑफ मोशंस कराती हैं, या फिर आप वेट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, वेट्स का मतलब वेट कफ्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप अगेंस्ट ग्रेविटी वाले पोजीशंस में आएंगे। जैसे अगर आप प्रोन लाइन लेटे हुए हैं, आपको अगर क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेच करना है, तो 90 डिग्री या 110 डिग्री तक तो आपने अपने आप कर लिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर वेट लगा दिया, तो वेट क्या करेगा, विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लेके आएगा हैवीनेस की वजह से, तो वो काउंट होगी आपकी मैकेनिकल स्ट्रेचिंग के अंदर। फिर होती है एक साइक्लिक स्ट्रेचिंग। साइक्लिक मतलब बार बार आप करते हैं उस स्ट्रेच को, तो बार बार करने वाले वो स्ट्रेचेस होते हैं, जैसे आपने एक बार किया तो आप 90 डिग्री तक पहुँचे, फिर तुरंत बाद थोड़ी देर बाद आपने मतलब 10-15 सेकेंड्स के बाद आपने वापस किया, फिर 10-15 सेकेंड्स के बाद आपने वापस किया। आप बार बार करते हैं। तो ये उन स्ट्रक्चर्स के लिए आप करते हो जिसमें एकदम से आपको रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा नहीं मिलता है या फिर डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब भी आप किसी शॉर्टन स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करते हो तो नॉर्मल रेंज जितना वो होता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको फील होता है। तो जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो बार बार उसको करना पड़ता है, तो उन केसेस में आप साइक्लिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्टिव स्ट्रेचिंग होता है, जो आप चलते हुए मूव करते हैं, मतलब स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आप खड़े खड़े करते हैं। एक्टिव स्ट्रेचिंग में आप चलते हुए मोशन में एक्टिविटीज़, वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको स्ट्रेचेस होते हैं, जैसे एरोबिक के कुछ मोशंस होते हैं जिसमें आप मूव करते हुए अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेचिंग में जिम्स भी आते हैं, जिसके अंदर अगेंस्ट द वेट्स से आप कुछ मशीन्स हैं जिसमें आपको ऐसे रेजिस्टेंस बैंड्स के थ्रू पीछे ले जाया जाता है, वो सब उसके अंदर आता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग प्रेजेंट। एंड लास्ट में पीएनएफ की स्ट्रेचिंग टेक्निक्स भी होती हैं जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने आज स्ट्रेचिंग पढ़ा है, जिसमें हमने स्ट्रेचिंग को डिफ़ाइन किया, हमने डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग यूज़ किए, देखे कि क्या क्या फैक्टर्स स्ट्रेचिंग को इम्पैक्ट करते हैं और किन किन तरह की स्ट्रेचिंग होती है, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। आई होप थिंग्स वर क्लियर टू यू। In case of any query, do let me know. This session was brought to you by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapith, Women's University. Thank you. Have a nice day.